Hello children, welcome to your maths class with Poonam Bagga. We are studying chapter 4 quadratic equations. In our last class we discussed what are quadratic equations. Then we learnt that many real life situations can be represented mathematically with the help of a quadratic equation, and then we learnt that how we can examine whether a given equation is quadratic or not. So today we are going to do exercise 4.1 on the basis of all this discussion. So be ready with your pen and paper and start along with me. Here is the first question. Check whether the following are quadratic equations. So here we have been given some equations and we have to check whether these equations are quadratic or not. और ये हम कैसे पता करते हैं? We look at the highest power of the variable. If it is 2, then the equation is quadratic, otherwise not. तो आप देखिए यहाँ पर general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, जहाँ पर variable की highest power है 2, and remember this a should not be equal to 0. This coefficient of x it may be 0 but a should not be 0. तो इस फॉर्म में अगर हमें इक्वेशन मिलती है जहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, तब वो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी बिगिन विद द फर्स्ट वन. लेट अस रीराइट इट. x plus 1 whole square equal to 2 into x minus 3. यहाँ पर इस परफेक्ट स्क्वायर को हम एक्सपैंड करेंगे और कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर और बीच में दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. वी आर यूजिंग द फर्स्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी and you know it is a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. इसी को यूज़ करते हुए हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं और RHS में हमारे पास क्या है? इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 2x minus 2 3 is 6. Now again x square plus here we will have 2x, 2 1s are 2, 1 square is 1 और इन दोनों टर्म्स को भी हम LHS में ले आते हैं. तो ये प्लस 2x यहाँ आके माइनस 2x हो गया और माइनस 6 यहाँ आकर प्लस 6 होकर इक्वल टू हमें मिलेगा 0, क्योंकि अब RHS में कुछ भी नहीं बचा है. नेक्स्ट हियर 2x माइनस 2x, ये दोनों कैंसिल हो रही हैं टर्म्स और बच गया है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज 7 इक्वल टू 0. और अब आप देखिए इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2 और इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पर आप देखेंगे कि द टर्म विद द वेरिएबल x ओनली इज मिसिंग. दिस मीन्स दैट दिस कोएफिशिएंट ऑफ x b इज 0, बट स्टिल इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट 0. x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, वो 0 नहीं है और इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है in spite of the fact that the term with the variable x only x is missing. वो मिस हो सकता है पर x स्क्वायर मिस नहीं होना चाहिए. So we write here it is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore the given equation is a quadratic equation. I hope it is clear. Next we have one more part. This one, let us simplify it. X square minus 2x equal to minus 2 into 3 minus x. It will be x square minus 2x and here if we open up the bracket it will be minus 2 into 3 minus 6 और फिर minus minus plus 2x. Now bring these terms to the LHS. x square minus 2x और ये 2x भी यहाँ आकर minus 2x हो गया और ये minus 6 LHS में आके plus 6 हो जाएगा और RHS में कुछ भी नहीं है इसलिए equal to 0. This gives us x square minus 4x. Minus 2 is minus 4 plus 6 equal to 0. और ये easily हम देख सकते हैं again the highest power of the variable is 2. So it is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. And therefore the given equation is a quadratic equation. Yes, it is. It's very easy. Next we have one more part. This one, let us again simplify. X minus 2 into x plus 1. This is equal to x minus 1 into x plus 3. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये x को पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x into x will be x square plus 1 into x will be simply x और फिर हम माइनस 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 into x will be minus 2x
minus 2 into 1 will be minus 2. This again will be simplified. First we multiply x by x, it will be x square, x by 3, it will be plus 3x, और फिर हम माइनस 1 से x को करेंगे तो माइनस 1x और सिंपली माइनस x, और माइनस 1 से 3 को करेंगे तो माइनस प्लस इट विल बी माइनस, it will be minus 3. Now bring all these terms to the LHS. First we can simplify these two terms. These are like terms. तो हम लिख सकते हैं x square minus x minus 2 equal to x square plus 2x minus 3. यहाँ पर 3 minus 1 it will be 2x, और यहाँ है 1 minus 2 and this is minus 1, and with it we have x. So x square minus x minus 2, इन टर्म्स को हम LHS में ला रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इट विल बी माइनस 2x एंड देन प्लस 3, और RHS में कुछ भी नहीं है, इक्वल टू 0. यहाँ देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो रही है टर्म्स, और क्या बच गया, माइनस एक्स माइनस 2x, दिस विल बी माइनस 3x, और फिर माइनस 2 प्लस 3, दिस विल बी प्लस 1 इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. अगर हम दोनों ही टर्म्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें और RHS में भी हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. अब आप बताइए क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यहाँ आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए थी, यहाँ पर 2 ना होकर के हाईएस्ट पावर हो रही है वेरिएबल की 1. तो ये एक लीनियर इक्वेशन तो है पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. सो वी राइट इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0, and therefore the given equation is not a quadratic equation. With this we have simplified and now we know that it is not a quadratic equation. Next we have this one. Again let us rewrite it. X minus 3 into 2x plus 1 equal to x into x plus 5. यहाँ पर फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को 2x से करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x को हम 1 से करेंगे तो ये मिल जाएगा ओनली 1x और x. देन माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो ये हो जाएगा माइनस 6x, और फिर माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया माइनस 3. यहाँ पर x इंटू एक्स इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 इट इज़ 5x. नाउ ब्रिंग दीज टर्म्स टू द LHS. 2x स्क्वायर और यहाँ है 1 माइनस 6 इट विल बी माइनस 5x. क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं विद वेरिएबल x ओनली तो ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं. माइनस 3 इसको यहाँ ले आए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और RHS में अब है 0. नाउ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी, लेट अस राइट देम टुगेदर. लाइक टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं. 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से है माइनस 5x और ये भी है माइनस 5x. ये दोनों लाइक टर्म्स हमने इकट्ठे लिख ली, ये दोनों लाइक टर्म्स एक साथ लिख ली, और फिर कांस्टेंट में सिर्फ माइनस 3 है इक्वल टू 0. This will give you 2 minus 1. It will be simply 1 x square, or we write it x square minus 5 minus 5. It is minus 10x and minus 3 equal to 0. और यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2. The degree of this equation is 2, so it is a quadratic equation. It is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore, the given equation is a quadratic equation. Next we have one more part. This one again, let us simplify this equation. First we will multiply 2x by x. This will be 2x square. Then 2x into minus 3 it will be minus 6x. और फिर हम minus 1 को करेंगे x से तो it will be minus 1x, और फिर हम माइनस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, एंड 3 1 ज़ा 3. दिस इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, देन x इंटू माइनस 1 इट विल बी माइनस 1x, देन 5 इंटू एक्स इट विल बी प्लस 5x, एंड 5 इंटू माइनस 1 इट विल बी माइनस 5. अगेन नाउ simplify these like terms. It will give you 2x square
-6 - 1 इट इज़ -7x + 3 और यहाँ से हमें मिल गया x², -1 + 5 इट विल बी +4x - 5. Bring all these terms to the LHS. 2x² और उसके साथ ही हम लिखेंगे x² वाली टर्म -x², फिर है -7x और इस 4x को लाएंगे LHS में, इट विल बिकम -4x. देन वी राइट द कॉन्स्टेंट्स, +3 यहाँ है और -5 को LHS में लाएंगे तो ये बन जाएगा +5 और अब RHS में कुछ भी नहीं है इसलिए इक्वल टू 0. नेक्स्ट 2x² - 1x² इट विल बी x², -7 - 4 it will be -11x and 3 + 5 it is 8. ये हो गया इस इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म और आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2 और इसलिए ये है ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 and therefore the given equation is a quadratic equation. So all these questions are very easy. Next we have one more part. This one, let us now open up this square. We write the equation once again, x² + 3x + 1 = x - 2 whole square. x² + 3x + 1 तो है ही, इसको कैसे खोलेंगे? फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर और बीच में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह से हमने इस परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपैंड कर दिया है. अब आप देखिए x² + 3x + 1 = x² -4x हो जाएगा ये और +2² is again 4. Again now bring all these terms to the LHS. x² + 3x + 1 -x² + 4x - 4 = 0. जब ये सभी टर्म्स LHS में आएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे. नाउ x² - x² तो x² की टर्म तो कैंसिल हो गई है. हियर वी हैव 3x + 4x दिस विल गिव यू 7x and 1 - 4 दिस इज -3 = 0. अब बताइए क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है 1 है इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. Okay, next one more we have x + 2 whole cube. This is equal to 2x into x² - 1. Let us write it once again. और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को जिससे हम बता सकें कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. फिर से देखते हैं उस आइडेंटिटी को. a + b whole cube इट इज़ इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b. इस फॉर्म में इसको लिखते हैं फर्स्ट क्यूब प्लस सेकेंड क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 2. देन वी हैव x + 2. 3ab a + b इस फॉर्म में लिख लिया है. और RHS में हम इनको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे. 2x को पहले करेंगे x² से तो ये हो जाएगा 2x³ x इंटू x² इट इज़ x³. पावर्स ऐड हो जाती हैं. माइनस 2x इंटू 1 इज़ 2x. अब आप देखिए इसको x³ + 2³ इज़ 8 प्लस 3 2 = 6 और x को x से करेंगे. इस पूरे को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6x² प्लस अब इस 3x इंटू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 = 6 6 2 = 12 और साथ में है x. दिस इज इक्वल टू 2x³ - 2x. सभी टर्म्स को RHS से LHS में ले आते हैं. यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म है x³ और इसको भी यहाँ इसी के साथ लिखेंगे -2x³. लाइक टर्म्स टुगेदर वी हैव रिटन. देन वी राइट 6x² और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर 12x और ये 2x यहाँ के +2x
और लास्ट में हम लिखेंगे कांस्टेंट प्लस 8 और अब RHS में है 0। देखिए हमने ये दोनों टर्म्स LHS में ले आए हैं हम, -2x³ और यहाँ से ये +2x और रिमेनिंग टर्म्स हमने लिख दी हैं। ये सभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल x। अब ये देखिए x³ -2x³, यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब 1, 1 - 2 इज -1 और वी राइट इट -x³। फिर हमें मिल रहा है यहाँ पर +6x² प्लस 12 + 2 इट्स 14x प्लस 8 = 0। अब आप बताइए क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है इस बार, देखिए 3, और इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2 एंड हियर इट इज 3, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. I hope it is clear to you all. Next we have one more part, this one. Again we have a cube here. It's x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 whole cube. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x³ - 4x² - x + 1, ये तो है LHS में, और इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे? यहाँ हमारी आइडेंटिटी लगेगी a - b होल क्यूब, और ये होता है a³ - b³ - 3ab × a - b। इस तरह से a³ माइनस b³ के लिए 2³ आ गया, -3 × x × 2 एंड इन ब्रैकेट वी हैव x - 2। इस फॉर्म में हमने इसको एक्सपैंड कर लिया है। नेक्स्ट x³ - 4x² - x + 1, और यहाँ मिल गया x³ - 2³ is 8 and then -3 × 2 = 6, x × x is x², so -6x²। फिर माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 और साथ में सिर्फ x। हमने इस पूरे को पहले x से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर x³ और x³ ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। कैसे? जब आप इसे LHS में लाएंगे तो -x³ होगा और इजीली कैंसिल हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर बच गया -4x², -6x² को यहाँ लाएंगे तो ये हो गया +6x²। फिर है हमारे पास -x और इस 12x को LHS में लाएंगे, ये हो गया -12x। फिर बच गया यहाँ पर +1 और इस 8 को भी आप LHS में लाएंगे तो +8, और अब RHS में कुछ भी नहीं बचा और इसलिए 0। यहाँ से 6 - 4 दिस विल बी 2x²। ये लाइक टर्म्स है दोनों, इनको सॉल्व कर रहे हैं हम, इट विल बी 2x²। ऐसे ही ये दोनों लाइक टर्म्स हैं जिसमें वेरिएबल सेम फॉर्म में है। यहाँ पर -1 - 12 -13x और ये हो गया 1 + 8 9 = 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है एंड इट इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0. Therefore, the given equation is a quadratic equation. So these were some equations and we have examined whether these are quadratic or not. Next we will be taking up some questions in which we will be having some situations which we will be representing with the help of a quadratic equation. Represent the following situations in the form of quadratic equations. ठीक है? First one, the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. यहाँ पर आप देखेंगे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमें दिया है और लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में एक कनेक्शन दिया है। वो क्या है? लेंथ इज 1 more than twice its breadth. तो आप देख रहे हैं कि लेंथ
ब्रेथ पर डिपेंडेंट है, इसलिए हमें ब्रेथ को वेरिएबल x से डिनोट करना चाहिए. वी डिनोट द ब्रेथ बाय x. ठीक है. नेक्स्ट आप देखेंगे ब्रेथ का नाम सेकंड आ रहा है इस पूरे स्टेटमेंट में. ऐसे भी आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं क्योंकि हमें कन्फ्यूजन रहती है कि हम लेंथ को x लें या ब्रेथ को. तो ऐसे केस में आप ऐसे देखिए कि लेंथ ब्रेथ पर डिपेंडेंट है, इसलिए हमें ब्रेथ को x लेना चाहिए. और यू कैन से दैट ब्रेथ इज कमिंग सेकंड इन द सेकंड ऑर्डर इन दिस स्टेटमेंट. ये सेकंड नंबर पे आ रहा है ब्रेथ वर्ड, इसलिए हम इसे x लेंगे. कैसे भी आप रिलेट कीजिए इसको. हाँ, तो इसको हमने x ले लिया. और अब लेंथ हमें कितनी दी हुई है? 1 more than twice the breadth. 1 more than twice the breadth. breadth is x. तो 2 times breadth हो गई 2x और उससे एक ज़्यादा, तो 1 plus 2x. ये हो जाएगा लेंथ का एक्सप्रेशन. और फिर हम इजीली एरिया निकाल सकते हैं. मल्टीप्लाई दिस लेंथ बाय ब्रेथ, you will get the area and then we will get one equation. Let us start. Let the breadth of the rectangular plot be x meters. Then the length of the plot will be 2x plus 1 meter. कैसे? 1 more than twice the breadth. So it is 1 more than twice the breadth x. And now according to the question, area of the rectangular plot, it is given by length into breadth. What is length? It is 2x plus 1. And what is breadth? It is x. तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया एरिया और ये हमें दिया है इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर. अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी. x into 2x it will be 2x square and 1 into x it will be 1x और simply x. और इस 528 को अगर हम LHS में ले आएँ तो ये हो गया -528 और अब RHS में कुछ भी नहीं बचा तो इसलिए इक्वल टू 0. ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए आप ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है. यहाँ पर a है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पर b हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 और ये हो गई कांस्टेंट टर्म. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस इक्वेशन से हमने इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया है. So we write here, this is the required quadratic equation. अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो हम सीखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में. नेक्स्ट वी हैव this one. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. देखिए इंटीजर्स तो आप जानते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी, ज़ीरो भी. और टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है. यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं हम, नेगेटिव नहीं ले रहे हैं. वी विल बी टेकिंग ओनली द पॉजिटिव वंस. और कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला, जैसे 1 2 3 ये सभी कॉन्जिक्यूटिव हैं, एक के बाद एक, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से. और इन सब में आप देखेंगे 1 1 का डिफरेंस है. इसका मतलब अगर हम एक इंटीजर लिख लें तो अगला इंटीजर कैसे मिलेगा, उसमें +1 करेंगे. 1 + 1 इट्स 2, 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 4, 4 + 1 इज 5. तो अगला इंटीजर कैसे मिल रहा है हमें, +1 करने से नेक्स्ट इंटीजर. तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, देन द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी x + 1, क्योंकि हमें अगला इंटीजर कैसे मिल रहा है, 1 ऐड करने से. तो अगर हमने एक इंटीजर x ले लिया है तो उसके बाद लगातार आने वाला दूसरा इंटीजर क्या होगा, इट विल बी x + 1. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट हैज बीन गिवन इक्वल टू 306. प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिस इज इक्वल टू 306. और ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा हमें, x इंटू x + 1 दिस इज इक्वल टू 306. यही तो दे रखा है दोनों का प्रोडक्ट. बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. x इंटू एक्स इट विल बी x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 विल बी x. और इस 306 को LHS में ले आएंगे तो ये हो गया -306. और अब RHS में कुछ भी नहीं बचा इसलिए इक्वल टू 0. और ये तो मिल गई हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यही तो चाहिए थी, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो हमें मिल गई है.
जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2. सो दिस इज द रिक्वायर्ड quadratic equation representing the given situation. Representing the given situation mathematically. Let me make some space. Okay, next we have one more. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. यहाँ पर again we have two people. One is Rohan and the second one is his mother. और आप देखिए क्या दिया है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन रोहन. इसका मतलब मदर की एज जो बताई गई है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एज ऑफ रोहन, और इसलिए हम रोहन की एज को x मानेंगे और इससे हम मदर्स एज इजीली लिख सकते हैं 26 ईयर्स ओल्डर देन रोहन. सो इट विल बी x प्लस 26 ईयर्स. दिस इज देयर प्रेजेंट एज. ये प्रेजेंट एज है रोहन की और ये प्रेजेंट एज हो गई रोहन्स मदर की. नेक्स्ट इट इज सेड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 ईयर्स बाद, आफ्टर 3 ईयर्स उनकी जो एज होगी उसका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 360. तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज तो हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स और मदर्स एज इट विल बी x प्लस 26 प्लस 3 and this will be equal to x plus 29 years. और अब हम इनका प्रोडक्ट ले सकते हैं equal to 360. Let us write it in fair work. Let Rohan's present age be x years. Then Rohan's mother's present age will be x plus 26 years. Then it has been given after 3 years. Now age of Rohan it will be x plus 3 years and age of Rohan's mother after 3 years it will be x plus 26 plus 3. This will be equal to x plus 29 years. Now we have written their ages. Next we will form one equation according to the question. It has been said product of their ages after 3 years it will be x plus 3 into x plus 29 और ये हमें दिया है equal to 360 in the question. तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है, एक इक्वेशन जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी मैथमेटिकली. मल्टीप्लाई x into x this will be x square, then x into 29 this will be 29x plus 3 into x it will be 3x and 3 into 29 3 9s are 27 and you will get it 87 equal to 360. अब आप देखिए x square plus 29 plus 3 it will be 32x और यहाँ पर हम 87 और इसको हम ले आते हैं LHS में, it will become minus 360 equal to 0 क्योंकि अब RHS में कुछ भी नहीं है. x square plus 32x यहाँ हम माइनस करेंगे it will be 10 minus 7 it gives 3, then we have 5 15 minus 8 it will be 7 and then 273 this will be equal to 0. और ये हो गई एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रही है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड quadratic equation because here the highest power of the variable is 2. Next we have one more. A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less,
then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब यहाँ पर एक ट्रेन की बात हो रही है और कहा गया है कि ट्रेन 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड. अगर स्पीड को 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस कर दिया जाए, स्लो कर दिया जाए, तब जो टाइम लग रहा है इट विल बी 3 hours मोर देन द यूजुअल टाइम. एंड वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन. वी नीड टू फर्स्ट एक्सप्रेस दिस in the form of one quadratic equation, and then we will be learning how to solve it in our coming videos. Remember this. Let us begin first by taking it. Distance covered by the train, it is 480 kilometers. Okay. Let the speed of the train be x kilometers per hour. Speed को हम x मान रहे हैं. Then the time taken by the train to travel 480 kilometers distance, it is given by distance upon speed. इससे दिया जाता है टाइम और डिस्टेंस है आपका 480 और स्पीड हमने ले ली x, तो 480 अपॉन x hours. This is the time taken by the train. Okay. अब according to the given condition in the question, speed of the train क्या हो गई? 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस कर दी गई है स्पीड. तो अब नई स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर. पहले स्पीड थी x और अब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है, कम हो गई है पहले से, इसलिए नई स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर. और ऐसे केस में जो टाइम लग रहा है इट इज़ 3 hours मोर. पहले कितना टाइम लग रहा था? पहले टाइम लग रहा था 480 अपॉन x hours. This was the time. अब 3 hours more it has been taking. तो नया टाइम हो गया +3. This much is the new time. अब हमें एक इक्वेशन बनानी है और वो कैसे मिलेगी? We know that speed into time it is equal to the distance covered. स्पीड है हमारे पास according to the condition it is x minus 8 और टाइम है 480 upon x plus 3 and this is equal to 480. क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है 480 किलोमीटर्स. बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और हमें एक इक्वेशन मिलेगी. हाउ वी सिंप्लीफाई? x माइनस 8 तो ऐसे ही रहेगा. यहाँ पर हम LCM ले लेते हैं x और इससे मिल गया 480 प्लस 3x. ये x 3 से मल्टीप्लाई हो गया. दिस इज इक्वल टू 480. नाउ x माइनस 8 एंड हियर वी हैव 480 प्लस 3x और इस x को हम क्रॉस में ऊपर RHS में भेज देते हैं. तो ये हो गया 480x. ठीक है, यहाँ से x डिवीजन में था, RHS में जाके मल्टीप्लिकेशन में चला गया है. नेक्स्ट वी नीड टू सॉल्व इट फर्दर. x into 480 it will be 480x. x into 3x it will be plus 3x square. ठीक है, पहले इसको 480 और फिर 3x से मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 8 इंटू 480. 8 8 ज़ा 64, 6 कैरिड, 8 4 ज़ा 32 and 6 it will be 38. 3840. Then minus 8 into 3 it will be minus 24 and x also. This is equal to 480x. अब आप देखिए यहाँ पर भी 480x है और यहाँ भी 480x है. दोनों ही टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. कैसे? इसको आप LHS में लाएंगे तो माइनस 480x होगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगी. क्या बच गया देखिए? 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0, क्योंकि अब RHS में कुछ भी नहीं बचा है. ये तीनों ही कोएफिशिएंट्स 3 से डिविजिबल हैं तो हम डिवाइड करते हैं 3 से टू गेट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म. इट विल बी x स्क्वायर, 3 8 ज़ा 24 तो 8x and now here 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 ज़ा 24 and 0. This is equal to 0. ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म और ये है वो इक्वेशन जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है मैथमेटिकली. वी राइट हियर दिस इज द required quadratic
equation representing the situation mathematically. Okay, with this we complete our exercise 4.1. Soon we will meet in our next class with the solution of a quadratic equation. Till then, practice these questions once again. Goodbye.